अस्सलामुअलैकुम मेरे नाजरीन हाजरीन सजनों भाइयों दोस्तों। आज हम कोलोराडो की पहाड़ियों पे जाएंगे और रॉकी माउंटेन्स के पास, और हम इस वक्त निकल पड़े हैं और इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि आज का हमारे ट्रिप का पूरा हाल व हाल। और मिलते हैं आपसे 10 सेकंड के ब्रेक के बाद। Yeah, I know. In a way, I'm glad they're going on the other direction. Yeah. And the good thing for falls all over the place. Okay. I'll have to pick up some speed. These people are right in. Okay, here's a scenic area coming up pretty soon. Use the right two lanes to take exit 195. You on to Colorado 91 South. I realized a little bit too late after watching the scene. This is the ski resort on the top, Yes, right? yes, on top, yes. Yes, they made the track This is yeah. around the trees. Yes, this is called Copper Mountain. So you wherever this is called ski run, where it's empty, they cut down the tree, make it plain for skis. You can see little post. That's like a ski run. The lift that takes you up, and then you come down. Sharik, do you have something like a sandpaper with you, a filer, anything to grind? I should have my Leatherman knife. It probably has something on Okay, I think I have one too. I'm going to see, because that one of the few lures I brought, which is my handmade for canyon, turned. सब यहाँ पे रुके हैं थोड़ी सी व्यू के लिए। आप ये देखें कि ये जो आपको नज़र आ रहा है सामने, ये जो ट्रीज़ काट के इन्होंने स्की रिजॉर्ट बनाया हुआ है। तो ऊपर से ये स्की करने वाले जो है ना विंटर में आते हैं, और यहाँ पे आपने मूवीज़ में इधर उधर देखा होगा। तो ये आप देखें कि बहुत ही खूबसूरत इलाका है ये। यहाँ से तुम बाय कर सकते हो ये। हाँ, यहाँ सोवेनियर बहुत मिलेंगे. It's okay. Okay, this is called Leadville. This is a Leadville Town of Leadville, Colorado. Of Leadville. This is the highest elevation town in the United States. Over 10,000 feet, above 10,000 feet of sea level. Can you imagine? These people never moved. Wow. Look at that. It says Leadville Salon from 1879. See on the right? Leadville Legendary Salon. So this was the main. Look, the best wild salon in America. Leadville Legendary Salon. So this was the shrine
Silver Dollar Salon. So Sharik, you know, most of this town, when they start booming, they wanted to put a saloon. The little sheds here. The wood is like It's all Look- cow. You look. can hear them all night. and you can see on the right, those are all cows. So these people, if they haven't moved, they are like about 80, 90 years old civilization. You know, people used to come and claim their territory here and just live here. So most of the people who moved out here live by the river or lake. So they can have water for the herd. Yeah, I like over here. It looks like it turns to like the Wild West almost. I know, I love it. This is the for EX Pioneer, K207BK Walsh, K205CM Salida, and online at ktlf.radio. Can you imagine, Sharik, at that time when people traveling here, they have to go with what they have. इस वक्त हम कोलोराडो की जो डेनवर के पास माउंटेन रेंज है वहाँ पे ऊपर चढ़ाई पे जा रहे हैं और ये आप देखिएगा कि यहाँ पे सारे आपको माउंटेन ही नज़र आएंगे और इसके अंदर जो है आप ये हो गया फ्रंट माउंटेन, रॉकी माउंटेन रेंज, फ्रंट का फुट हिल ऑफ रॉकी माउंटेन। तो मैं आपको अभी हमारे सुल्तान भाई हैं जो इस इलाके में काफ़ी अर्सा रहे हैं, वो आपको यहाँ का थोड़ा हाल व हाल बताएंगे। सुल्तान भाई बताइएगा ज़रा कि आप सामने देखिएगा। हाँ हाँ, आप हाँ, इधर देखें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। तो आप बताएंगे कि ज़रा कि यहाँ पे ये आपने यहाँ पे कहाँ पे फिशिंग करी है, कैसे करी है जी। और कैसी यहाँ पे फिश होती है, किस टाइप की होती है और आप लोग यहाँ कितने दिन रहते हैं कैनियन के अंदर। सही। और कैनियन का मतलब ये है कि यहाँ पे एक वादी सी होती है जिसमें चारों तरफ पहाड़ होते हैं और उसके बीच में एक नदी बह रही होती है जहाँ पे ये लोग फिशिंग वगैरह करते हैं। तो सुल्तान भाई ज़रा बताइएगा कि आपने अपनी लाइफ के क्या एक्सपीरियंस किए यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह है कोलोराडो और जो हम पहाड़ी में जा रहे हैं ये है रॉकी माउंटेन्स। तो हम अभी फ्रंट रेंज पे है रॉकी माउंटेन के, ये आगे हम लोग जाएंगे जो पहाड़ के ऊपर होंगे और ये सारी वादी है, ये है एक्चुअली स्की रिजॉर्ट और यहाँ लोग आते हैं फिशिंग कैंपिंग करने, शहर की गर्माहट से परेशानी से दूर होने, रिलैक्स करने के लिए। यहाँ आप देखोगे लेफ्ट राइट पे ये सारे घर बने हुए जो यहाँ पहाड़ी पे रहते हैं, ये जो लोग जिनकी लाइफस्टाइल माउंटेनियरिंग की है। और यहाँ की जो पहाड़ी के बाद में जो नदी होती है वो बर्फ से पिघलती है और ये पानी जो होता है इधर जो हम जा रहे हैं उसका नाम है आरकानसा रिवर। ये बर्फ का पानी जो पिघल के आता है वहाँ हम लोग फिशिंग करेंगे इंशाल्लाह आज। और वहाँ दो किस्म की खास मछली होती है जिसको कहते हैं ट्राउट। एक होती है ब्राउन कलर की, उसको कहते हैं जर्मन ब्राउन। एक होती है रेनबो ट्राउट जो सिल्वर किस्म की होती है, कलर की होती है और उसमें जो कलर होता है पिंकिश कलर आ जाता है और ये नेचुरल होती है। इसका जो मेन
जो ट्राउट होता है इसको आप जब फ्ले करते हैं, खोलते हैं, तो इसका जो गोश्त है वो सैमन की तरह ऑरेंज टाइप का होता है, जो ये नेटिव ट्राउट होती है यहाँ की नेचुरल। दूसरी होती है रेनबो ट्राउट, वो व्हाइट कलर का होता है लेकिन बाहर से बड़ी खूबसूरत होती है, कलरफुल होती है। तो इंशाल्लाह हमारा इरादा है आज वहाँ पहुँच के वो वहाँ फिशिंग करना है। तो ये करीब करीब यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है जहाँ मैं जाना है, और वहाँ पहुँचने के बाद इंशाल्लाह फिशिंग करके जो हम लोग करेंगे। तो वहाँ हम लोग जाते हैं तो करीब करीब कभी कभी 2-4 दिन रुकते हैं। तो पहला दिन तो ऐसा होता है कि रिलैक्स हो गए, देखे मौसम क्या है, क्या हाल है, और अगर सुबह का टाइम है वो बेस्ट है मछली पकड़ने के लिए। जैसे सूरज निकलता है फजर के बाद से दोपहर तक, और फिर थोड़ा स्लो हो जाता है, फिर पिक करता है जैसे मगरिब के टाइम तक। तो वो 2 टाइम हमारे पीक टाइम है इंशाल्लाह मछली पकड़ने का। और हमारा इरादा है वहाँ जब पकड़ेंगे इंशाल्लाह तो फ्रेश ट्राउट से अच्छी कुछ होती नहीं है, जो हम लोग उसको कैंप फायर पे बना के इंशाल्लाह खाने का इरादा रखते हैं। ठीक है। वैली में उतरेंगे, चेक करना है। मोहम्मद भाई ये सीन देखो इधर, ये इधर ये राइट में। ये डेनवर जो है ना, ये 6:30 पहले इधर है ना एक खाली यहाँ जो चलती थी गाड़ियां नहीं होती थी, वैगन ट्रेल बोलते थे। वो पहिए की 4 पहिए की गाड़ी वैगन होती थी, ढकी हुई होती थी। और कुल्हाड़ी से सोना निकालते थे। ये गोल्ड माइन टाउन है, आइडाहो स्प्रिंग। सोना तो नहीं होगा अभी तक? नहीं है, अंदर है अभी। देखो यहाँ से देखो, अब देखो यहाँ से दिखेगा आपको। और ये टाउन ये राइट में आ गया, देखो ये टाउन। मैं रुको इधर, नहीं सही चलने दे। ये टाउन है पूरा, ये मिक्स हो गया अभी गोल्ड माइन टाउन के हिसाब से, क्योंकि अब पब्लिक बहुत आती है। इधर ही वो स्विमिंग पूल भी है जहाँ आप रखा, ये पूरा गोल्ड माइन टाउन है। भरपूर अब तो भर गया से केव का। और ये नीचे शेड है जहाँ लोग छानते थे वो रेती। सुल्तान भाई, ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं और ये जो पहाड़ों से निकल रहा है, इसकी जी। क्या हिस्ट्री है? ये जो है ये करीब करीब 100 साल पहले ये गोल्ड माइन टाउन था। इधर एक गोल्डन एरर चलता था, उसको इन लोग कहते थे गोल्ड रश। जो सोना बेभाव का निकला था, दुनिया भर से लोग आते थे इधर। और ये टाउन का नाम है आइडाहो स्प्रिंग। इधर लोग आते थे उस टाइम पे, सिर्फ आने का था, जैसे गधे हुए, खच्चर हुए और घोड़े, और कुछ नहीं होता था। इन लोग उस पे सामान लाद के लाते थे। उस टाइम पे इनका तरीका ये था कि डायनामाइट से इन लोग उड़ाते थे,
गुफा बनाने के लिए, टनल बनाने के लिए, हाँ सर। और उसमें खुदाई करके इन लोग वो सोना ढूंढते थे। उस टाइम पे इनके पास इलेक्ट्रॉनिक के कोई गैजेट नहीं होते थे, तो सारा एक एक्सपीरियंस के हिसाब से होता था, एक अंदाजे के हिसाब से होता था। तो कितने टाइम पे मिलता था, कितने टाइम पे नहीं मिलता था। अब जिसको वो जगह जगह इन लोग, यहाँ बहुत जगह जगह लोग ढूंढते रहे, उन लोग के अपने अपने तरीके इस्तेमाल किए इन लोग ने सोना ढूंढने के। और जिसको ये मिल जाता था वो गोल्ड नगेट्स होते थे, छोटे छोटे पीस होते थे, जिसको लोग वापस डेनवर टाउन में लाते थे, उसको पिघलाते थे। पिघलाने के बाद एक आदमी होता था जो उसको बताता था कि इसकी कैरेट क्या है, किस कैरेट का गोल्ड है, और ये गोल्ड की वैल्यू भी है या नहीं है। और अगर वैल्यू अच्छी होती थी उसको उस रकम से कैश पैसे मिल जाते थे उसको, और सारा रजिस्टर्ड लीगल होता था। और ये टाउन में अलग अलग आपको रेत दिखाई देगी। वो जो रेत है ये पहाड़ के अंदर से आई है, जो हल्की सी गोल्डन ब्राउन कलर की है। ये पूरे पहाड़ों में लोगों ने गोल्ड ढूंढा है, और अल्हम्दुलिल्लाह कईयों को मिला भी है। हिस्ट्री है 100 साल पुरानी। तो आप सुल्तान में आपको कुछ गोल्ड मिला? मुझे गोल्डन वाइफ मिल गई थी इधर कोलोराडो में। गोल्ड तो मैंने ढूंढा, लेकिन जो गोल्ड मुझे मिला वो गोल्ड नगेट्स थे, लेकिन उसकी कैटेगरी हाई नहीं थी। आज भी यहाँ पानी में लोगों को वो गोल्ड मिलता है जो बरसात में बह के पहाड़ से उतर के आता है, केव वगैरह से। आज भी लोगों को वो दिखाई देता है। ये लेक देखो कितनी प्यारी है। हाँ, उसी के लिए मैंने ऑन किया था। जी सर। ये जगह का नाम है जॉर्ज टाउन, और ये लेक है जॉर्ज टाउन लेक। जॉर्ज टाउन लेक। हाँ। अच्छा। तो हम लोग इधर भी आके मछली पकड़े हैं। वही किस्म की ज्यादातर मछलियां मिलती है। रेनबो ट्राउट इधर बहुत होती है। हाँ, तो ये पूरा एरिया है जॉर्ज टाउन। मोहम्मद भाई कैसा लग रहा है सीन इधर? जबरदस्त लग रहा है। ये मुझे अपने वहाँ नॉर्दर्न एरिया की याद आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस भाई ये यहाँ जैसे जाते हो ना, और यहाँ रहते हो आप, ये जगह जाते ना अलग अलग जगह, जो फिर यहाँ से जाने को दिल नहीं होता। अच्छा, ये इसके वजह से लेट हो रहा है। डेनवर वापस मूव हो जाए। अरे यार, वो बाइडी जरा प्रॉब्लम दे रही है, डेनवर आ रहा है। नहीं काटते हैं वैसे। तो नाज़रीन, कोलोराडो की पहाड़ियों के बहुत हाइट पे हम जा चुके हैं। इस वक्त हमें थोड़ा सा ब्रीदिंग में हम फील कर रहे हैं कि हमें थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है। तकलीफ़ तो नहीं कहूँगा, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये कि हम काफ़ी इस वक्त हाइट पर हैं। तो इस वक्त सुल्तान भाई कुछ हिस्ट्री बता रहे हैं आपको। तो जी सुल्तान भाई, क्या कह रहे थे आप? जी भाई, सलाम अलैकुम। ये जो जगह है ये है अरापाहो नेशनल पार्क। और यहाँ की जो वादियां हैं, हिस्ट्री में यहाँ लोग रहते थे अमेरिकन इंडियन, और रेगुलर लोग भी होते थे जो यहाँ से फ्रेंच सेटलर्स हैं, अमेरिकन सेटलर्स जो आते थे। गाड़ियां वगैरह नहीं होती थी उस टाइम पे गाड़ी वगैरह नहीं होती थी, तो लोग रोड से आते थे। तो उस टाइम पे ये अमेरिकन इंडियन लोग रेड करते थे इन पे सामान लूटने के लिए। तो ये एक हिसाब से यहाँ के वो डाकू टाइप के थे। तो ये एरिया में बहुत उनकी पहुंच थी, जो आज नहीं है, लेकिन उनकी आबादी अब भी है। और ये इलाका पूरा लबालब पहाड़ों से, जानवरों से भरा हुआ है। ये इलाका अभी स्की रिजॉर्ट हो गया है, जिसका नाम है लवलैंड कोलोराडो। लवलैंड कोलोराडो। लोग विंटर में आते हैं हजारों लाखों की तादाद में इधर स्कीइंग करने के लिए। और ये करीब विंटर सीजन 6 महीने चलता है इधर। ये दिसंबर से चालू होता है। वो आपको ऊपर विंटर दिखाई देगा, वो स्की लिफ्ट एकदम ऊपर टॉप में। वो सारा जो पहाड़ पे झाड़ नहीं है, वो स्की रिजॉर्ट है, वो लिफ्ट दिखाई दे रही है। अजीज भाई जूम कर सकते हैं ऊपर में? वो स्की रिजॉर्ट है। ये है लवलैंड कोलोराडो की स्की रिजॉर्ट, जो विंटर में ये टाउन में लोग आते हैं। और यहाँ की जो लोकल टाउन है, जो यही लोग रहते हैं, और उनकी जिंदगी यही माउंटेन टाउन की है। और ये लेफ्ट में देखेंगे, ये स्की लिफ्ट है जो आपको पहाड़ पे ऊपर ले जाती है, और ये बाकायदा चलती है, बहुत डिसेंट, बहुत टिकाऊ।
अभी आपको टनल आ रही है आगे, जो ये हमको दूसरी साइड पहाड़ के ले जाएगी। तो ये टनल जो है इन्होंने पहाड़ को पास करने के लिए बनाई है। पास करने के लिए बनाई है, क्योंकि ये पहले जो था इस पे जाना बड़ा मुसीबत होती थी। जो लोग होते थे वो सिर्फ घोड़े से या घोड़ा गाड़ियों से जाते थे और बड़ी दिक्कत होती। घोड़े से तो निकल जाते थे, लेकिन यहाँ की जो फैमिली थी 80, 90, 100 इयर्स में जो पहले जो पायनियर आए हुए थे, जो पहले के लोग, वो लोग इधर घोड़े से सवार करते थे सामान ले जाके, और गाड़ियों को रस्सी से खींच के ले आते थे, जो हमारे इंडिया पाकिस्तान की बैलगाड़ी जैसे होती थी। लेकिन इसको यहाँ कहते थे वैगन, जो ऊपर से एक चादर सफेद कलर की ढकी होती थी, क्योंकि यहाँ धूप से बचने के लिए वो रिफ्लेक्शन करती थी व्हाइट चादर। और जैसे वो हमने देखा था ना अर्थुरुल गाजी के प्रोग्राम्स में, वो वैगन दिखाते वैगन, थे। हाँ। तो यहाँ जो लोग हैं वो पूरा एक ग्रुप बना के एक साथ निकलते थे, जिसमें एक लश्कर जो बोलते हैं उस टाइप का होता था, कैरावैन टाइप का, जो 10 से लेके 40-50 लोगों की एक वैगन ट्रेन बनती थी, एक के पीछे गाड़ी चलती थी। उसमें एक आदमी होता है जिसको इन लोग लीडर अपॉइंट करते थे, जो ये एरिया को पहचानता था और वो लीड करता था। फिर जगह जगह इन लोग नदी के किनारे रुक के खा पी के रात गुजार के फिर निकलते थे। अब ये टनल जो है वो इतनी बड़ी है जितना इसके ऊपर पहाड़ है, तो उस पूरे पहाड़ को पास करने के लिए इन्होंने नीचे से खोद के टनल बना दी है, बजाय ये कि वो जिगजैग ऊपर से आपको पहाड़ के दूसरी तरफ ले जाते। और ये टनल का नाम है आइजनहावर टनल। ये आपको एलिवेशन फील हो रहा होगा कान में। चलो अभी 9 मिनट आराम से बहुत तेज है। हालांकि गैस बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। आई नो, वो तो हाँ, ये एलिवेशन से हम लोग क्रूज करते रहते हैं, गैस बचती है इसमें। पता चला हमें ये डिलन लेक यही है। हाँ, यही है। ये लेक डिलन है। ये हम पहाड़ी के, आबादी बहुत है। भाई ये बहुत ही पॉपुलर है ये जगह, लेक डिलन है ना, ये बहुत ही हिस्टोरिकल है। यस, हमने एक ये फिश पकड़ी है तो इसको हम रिलीज कर रहे हैं। बहुत छोटी है मछली और इसको जो है हम अभी आस्ते से, ये कैमरे को दिखा दो, ये देखिए ये कैमरा हाँ, मैंने हाँ, सही है। अब आप ऐसे हाथ आगे रखे उसके, ऐसे, हाँ, उसको अपराइट कर, अपराइट, हाँ, ऐसा। अब उसको रिलीज होने दो, हाँ, रिलैक्स होने दो। ऐसा पीछे से पकड़ो कि मुंह के ऊपर खाली हाथ रहे ना, फिर ये खुद ही जाएगी। No, I want him to recover first. थोड़ा एग्जॉस्टेड हो गई है, वो भाग जाएगी खुद ही। ये देखो, ये तैयार है जाने के लिए। ये गई। ये आस्ते आस्ते रिकवर हो रही, वो जा रही। That's it, gone. वो उधर बस, अब वो चल रही। we catch the fish and we released it. It's catch and release. Yep. We are going to a hidden special lake. River. It's a river, Yes. and this is the way to get to that river. And it's called Arkansas River. So, not a lot of people know about this river, but Sultan Bhai wants to go there, and we're gonna have some nice fish over there. So this is going in between the mountains, and it's all dirty road, and we may be driving for another 5 to 8 minutes to get to that spot. And once we get to that spot, we'll show you what we have over there. Stop. ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम बैठे हैं और यहाँ पे ये चिल हो रहा है, और चिल के साथ साथ जो है ना ये मोहम्मद भाई बैठे हुए हैं, और ये राफ्टिंग हो रही है यहाँ पे। और ये
आरकानसा रिवर कहलाती है और ये ऑल द वे जाती है पीछे तक। और हम लोग इस वक्त यहाँ पे पत्थरों के ऊपर बैठे हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इस वेदर को। और हमारे दो साथी जो हैं, आपको अगर नज़र आ रहे हो तो वो उधर फ़िशिंग कर रहे हैं। तो हमने जो है अपनी फ़िशिंग जो है वो हुक्के के साथ करते हैं, तो चल रही है। ये आपको हमारे दो साथी सुल्तान भाई और उनके बेटे शारिक जो हैं आपको फ़िशिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ पकड़े तो हम कुछ खाएं, वरना इस वक्त तक तो जो है ना वो भूख से बुरा हाल हुआ है। खैर हमारे पास चिप्स, सोडा, पानी वगैरह तो बहुत कुछ है हमारे पास, वो तो हम करते हुए आ रहे हैं। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, लेकिन बहुत ही सिक्लूडेड है। यहाँ पे हर किसी को पहुँचना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। ये हमारे सुल्तान भाई क्योंकि यहाँ 20-25 सालों से रह रहे हैं, तो इनको ये पता थी ये जगह, और ये जो है हमें यहाँ पर लेकर आए। This is the steep rock we are climbing, and we're gonna go all the way up there, and we're gonna come down on the other side. So let's see how it goes. We're gonna go slowly and easily. We have हमारे साथ सामान भी है, and we also have This is the mountain we wanted to avoid. और मोहम्मद भाई स्टॉप फॉर सांस लेने के लिए। You want me to take it back? No. Okay. Just keep coming this way, zigzag. This is the only way. बहुत क्लियर है। तो इसके लिए यहाँ मछली दिख रही, लेकिन वो बहुत चौकन्नी होती है। तो आते हुए यहाँ बेट ट्राई करेंगे, जो आप लोग ट्राई करेंगे ये जगह। We are at the top of the mountain right now, and you'll see the river on the bottom. That's the canyon going that way, all the way. And this is the Arkansas River. ये फाइनली जनाब हम नीचे पहुंच गए हैं, और दोबारा से जो है सुल्तान भाई ने फ़िश का डिनर का इंतज़ाम किया हुआ है, और वो फ़िश पकड़ने में मसरूफ़ हैं। ये मोहम्मद भाई बैठे हुए हैं इधर, इनके हाथ में कांटा लग गया तो ये ज़रा कांटे वाटे देख रहे हैं। और ये वो पहाड़ी है जहाँ से हम उतरे हैं। ये आप देख रहे हैं, इस पहाड़ियों से इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, साढ़े कार दे कुछ को रोड शोड नहीं आगा। तो और ये इसका मंजर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल पुरसुकून, दूर दूर तक ना इंसान ना कोई जानवर रात में आते हैं यहाँ पे, भालू वगैरह और भी बहुत सी किस्म की चीज़ें। और पानी का आप कलर चेक करें तो आपको पता होगा कितना साफ़ पानी है ये, यानी कि अगर आप चाहें तो इसको आप पी भी सकते हैं। और इंशाल्लाह यहीं से हम मच्छी पकड़ेंगे और आज रात का डिनर करेंगे। सुल्तान भाई इस वक्त जो है ये कैंप फायर बिल्ड कर रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं कि इन्होंने ज़रा डिफरेंट तरीके से किया है। हम ज़रा जट जंगलियों की तरह कर रहे थे। अरे नहीं कोई बात नहीं। इन्होंने कहा कि नहीं भाई इंसानों की तरह करो, तो फिर इन्होंने जो है ना उसको डिसमेंटल किया है। उसके नीचे कुछ टिश्यू पेपर रखे हैं और ये उन्होंने फायर की हुई है इस वक्त। हवा बहुत है ना। हाँ, ये तो और अच्छी काम की है, हमको फूकने की जरूरत नहीं, और हवा अपना काम कर देगी। ये बेस हो गया ये अब आप देख रहे हैं कि ये फायर शुरू हो गई है, बस अब मछली का इंतजार है। टाइम हो गया इसका। इस वक्त हम
इस जगह पे हैं कि जहाँ पे कोई इंसान नहीं है सिवाय हम चारों के। तो जो भी लकड़ी रखोगे ना, सब क्रॉस रखते जाना है, सही है ना। ये नीचे से टीपी बनेगा, ए फ्रेम जैसा है ना, ऐसा। देखो ये ऐसा मस्त चालू होती है। ये देखें सर, अब ये फायर हो गई है बड़ी गोली किस्म की, और अब इसके ऊपर कुछ नहीं करना है, सिर्फ मजीद लकड़ियाँ हमने रखनी है। और उसके बाद में ना ये बड़ी बड़ी लकड़ी है ना, ये लग के उसको आगे भटकाते जाना। अच्छा, उसको तोड़ने का तरीका ये है, हाँ, ये रॉक पे रखे। रख के रखे दिए। ये देखें, ये सुल्तान भाई जो है इस वक्त टार्जन बने हुए हैं, ये बेस्ट सोल्यूशन। और इन्होंने जो है ना मोटी मोटी लकड़ियाँ काट के इसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म की फायर बनाई है। ये अब इसमें हम लोग फूंक मारते हैं ना, हाँ, ये फूक का काम खत्म हो गया। खत्म हो गया फूंक का। बस अभी आसपास में जितने भी है ना, जर्मन ब्राउन। So we got the first fish of the day, and this is, what kind of fish is this? It's called German brown. It's a brown color. So let me show you the beautiful coloration. You want to zoom in? Look at the color, and it's like golden at the bottom, the color on top, and it has a, on the teeth, it has teeth on the tongue here. If you want to see, right here, they have teeth right there. Yeah. So isko, He's the winner of the day today, and he's gonna catch 6 more. अजीता देखो कैसे भागने की कोशिश कर रही, देखो देख रहे हो, जा रही, देखो। ऐसा कर, देखो ये रॉड ऐसा हो सही हो, झटके दे। अब एक काम करना, फर्स्ट राउंड एक इधर एक इधर से सपोर्ट कर दो, तो खींचे ना, तो खींच के नहीं लेंगे, देते रहना। तो ये भी ये आपको तैयार कर। हमें वो वाली हरकत नहीं करनी जो आप करते हो। तैयार करना है आपको, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे आएंगे ना, ये पूरा आपको आइडिया है कि जो आज देख रहे हो ना, तो आपको एक आइडिया मिल रहा है कि क्या हरकत है ये। यार क्या खुशबू आ रही है फायर की।